दो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं क्लास 10 का चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। हम सभी लोग जानते हैं कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई बहुत साइंटिस्ट ने किया था। उसमें जो मेन नेम्स आते हैं उसमें मेंडलीफ का आता है, मोइले का आता है। मेंडलीफ ने क्या किया कि जितने भी एलिमेंट्स हो उनको उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर अरेंज किया था, लेकिन उसमें काफ़ी ड्रॉबैक्स आए हुए थे। इसी को मॉडिफाई मोइले ने किया। मोइले ने क्या किया था, जितने भी एलिमेंट्स उनके टाइम में थे उन सबको उन्होंने उसके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया था, जिससे जितने भी ड्रॉबैक्स मेंडलीफ के टेबल सारे क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे। इसके बाद देखिए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। That means the physical and chemical properties of the element are totally dependent on the atomic number. So we can say that the atomic number is the fundamental property of any elements. If we talk about the modern periodic table, then it contains 7 periods and 18 groups. If we go from left to right, that is in horizontal mode, then it is called periods. And if we go from top to bottom, then it is called groups, which is vertical in mode. Now we can see the periodic properties. First of all, what is periodic properties? These are the properties which appears at the regular interval of time. That means there are some properties which can repeat themselves in a fixed interval of time in the periodic table. And the reason for the periodic table is the appearance of similar electronic configuration of the valence shell at regular intervals. It means that there are elements which show the similar electronic configuration of the valence shell, which means they show the similar properties also, and the number and element of the electrons in the various shells. As we know that the electrons are arranged in various shells. If the number and element of electrons are same, then their properties must be similar. And the main periodic properties which can be take here are atomic radius, ionizing potential, electron affinity, electronegativity, and metallic and non-metallic characters. Hello friends, now we can see the periodic properties. The first periodic property is atomic radius. First of all, what is atomic radius? Atomic radius means it is the distance between the nucleus and the valence shell of an atom. In the figure we can see that the atomic radius is the distance from the nucleus and the last shell. If we see the variation in the atomic period in the periodic table, then if we talk in group, then atomic radius increases as we go from top to bottom due to the increasing number of shells. As we know, as the number of shells increases, then the distance between the nucleus and the shell increases. Therefore, the radius also increases. But if we talk in period, then its value decreases as we move from left to right because of increase in nuclear charge. Nuclear charge. First of all, what is nuclear charge? Nuclear charge is the force of attraction between the nucleus and the last electron. If the nuclear charge increases, then the nucleus attracts strongly electron towards itself, due to which its size decreases. In last, we can see the atomic radius is directly proportional to the number of cells and inversely proportional to the nuclear charge. That means if we increase the number of cells, then the atomic radius increases, and if we increase the nuclear charge, then the atomic radius decreases. The next periodic property is ionization potential. What is ionization potential? It is the amount of energy required to remove the last electron from an atom in a gaseous state. Here we can see, for example, suppose M is a metal from which we can remove an electron and it forms cation. If we can remove one electron, then it is say first ionization potential. If we can remove another electron, then it is called second ionization potential, and so on. The ionization potential is measured in electron volt. If we see in variation, then the ionization potential is directly proportional to the nuclear charge and inversely proportional to the number of shells. It means if we talk in group,
then if we take in group, then if we move from top to bottom, then the value of ionization potential decreases because the number of shells increases. And if we talk in periods, then the value of ionization potential increases because the nuclear charge increases. And the third property is electron affinity. Electron affinity, it is just opposite to the ionization potential. It is the amount of energy released when an electron is added to an gaseous isolated atom. Here, its unit is also electron volt. And if we talk in variation, then in periods its value increases, and in groups its value decreases. In case of period, as we move from left to right, the nuclear charge increases. It means it can attract the electron more strongly. But in case of group, as we move from top to bottom, the number of shells increases, due to which the nuclear charge decreases, so that it cannot attract the electrons more strongly. नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेड प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा हम बॉन्डेड एटम्स के बीच की बात करते हैं. इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कोई दो बॉन्ड बने हुए हैं, कोई दो किसी दो एटम के बीच बॉन्ड बना हुआ है. इसमें जो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है. जैसे HCl की बात करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन है. क्लोरीन में जो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन. तो करता क्या है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के रखा रहता है. इससे एक पोलैरिटी डेवलप होती है. अगर हम इसको टेबल में बात करते हैं तो हम अक्रॉस द पीरियड देखें तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होती है हमेशा इंक्रीज करती है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है. जबकि हम ग्रुप की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू डिक्रीज करती है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स क्या करता है, इंक्रीज करता है. और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करने की वजह से उसका न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, डिक्रीज होता है. अगली पीरियडिक प्रॉपर्टी मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी. मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं. मेटल्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं. और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जो ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं. अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, फिर वेरिएशन देखा जाए तो हम ग्रुप की बात करते हैं. जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो हमारी मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है वैसे इंक्रीज करती है. यानी कह सकते हैं जो एलिमेंट जितना नीचे होगा वो उतना अच्छा मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करेगा. जबकि हम पीरियड की बात करते हैं तो लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है और मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है. यानी जो एलिमेंट जितना राइट की तरफ होगा वो उतना अच्छा नॉन मेटल होगा. आगे हम देखते हैं इनर्ट एलिमेंट. इनर्ट एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है. हम सभी लोग जानते हैं कोई भी एटम्स होता है उसके पास अगर उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या होता है, स्टेबल होता है. इसमें एक सेक्शन रहता है हीलियम का. हीलियम के पास सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसलिए वो स्टेबल है. यानी ये कह सकते हैं कि अगर एलिमेंट्स के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लेता है. जैसे एग्जाम्पल देखिए, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है. हीलियम में देखते हैं इलेक्ट्रॉन 2 है, नियॉन में 2 8 है, आर्गन में 2 8 8 है. यानी इनके क्या होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अंतिम शेल है वो क्या है, फुलफिल्ड है, यानी स्टेबल है. यानी इसलिए इन्हें इनर्ट कहा है. इनर्ट का मतलब ये होता है अनरिएक्टिव. अगर हम कुछ कंपाउंड्स की बात करते हैं तो उसको भी देख लेते हैं. इंपॉर्टेंट पूछा जाता है आपसे जनरली 2 कंपाउंड अपने इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स. अगर हम ऑक्साइड्स की बात करते हैं, कोई मेटल है नॉन मेटल उसके ऑक्साइड्स बनते हैं. तो जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक एसिडिक होते हैं. यानी जो ऑक्साइड जितना राइट में होगा उतना स्ट्रांगली एसिडिक होगा और जो जितना लेफ्ट में उतना स्ट्रांगली बेसिक होगा. जबकि हम ग्रुप की बात करते हैं, अगर हमारा टॉप का एलिमेंट है उसका ऑक्साइड एसिडिक होगा और डाउन का ऑक्साइड होगा बेसिक होगा. सेम कंडीशन हाइड्रोक्साइड्स की बात करिए. अगर हम लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो इसमें जो वेरिएशन होता है वो आता है बेसिक एम्फोटोरिक. यानी लेफ्ट का हाइड्रोक्साइड ज़्यादा बेसिक होगा, राइट मूव करते जाएंगे तो ये एम्फोटोरिक तक चेंज होता जाएगा. जबकि हम ग्रुप की बात करते हैं तो जो हमारा हाइड्रोक्साइड टॉप पे होगा वो लेस बेसिक होगा, जबकि जो जितना नीचे होगा उतना ही स्ट्रांगली बेसिक होगा. इसको आप देख लीजिएगा. बाकी इसके कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा बुक से. बाकी प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या तो आप स्कूल चलने पे बाकी हम डिस्कस कर लेंगे. थैंक यू.